हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फूड एग्री क्लासेस। माई सेल्फ लक्ष्मीकांत रावत। तो आज हम आपके लिए आए हैं प्रोटीन पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो आज प्रोटीन के बारे में बात होने आएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोटीन। तो हालांकि हमने प्रोटीन पार्ट फर्स्ट में भी प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया था, इंट्रो बता दिया था, लेकिन अभी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पूरा टॉपिक प्रोटीन्स का। तो यहाँ भी इंट्रो बताएंगे। प्रोटीन आर कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल विदाउट विच लाइफ इज नॉट पॉसिबल। दे आर essentially constitute of all living cells. A complex nitrogenous organic compound, a polymer of amino acids, therefore defined as high molecular weight polymers of low molecular weight monomer known as amino acids, which are linked together by peptides bond. Protein are polymer of some 20 different amino acids joined by peptide bond. The amino acid composition establishes the nature of sensory and tertiary structure. These in turn significantly influence the functional protein properties of food protein and their behavior during processing. Next, classification of protein. तो प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. प्रोटीन हैव बीन क्लासिफाइड इन मैनी वे. जनरली आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिक कंपोजिशन, शेप एंड molecular solubility. Here we will discuss about on the basis of composition. On the basis of composition, protein are classified into three groups: simple protein, conjugate protein, and dry protein. Simple protein. What is simple protein? These are protein which consist of only amino acids. They do not contain any other compound. That also known as simple protein. Conjugated proteins. These are protein which consist of amino acid as well as other class of compound. They are further classified into 6 group. आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ और आपको इम्पोर्टेंट बात अमीनो प्रोटीन्स के बारे में बता देना चाहता हूँ. जो प्रोटीन टेस्ट होता है, ये कंप्यूटर एग्जाम में पूछने जाने वाला क्वेश्चन है. वो प्रोटीन जो टेस्ट होता है, और वो उसके दो मेथड्स हैं, कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जाता है. तो आप लिख लीजिएगा. पहला जो टेस्ट है बायोरेट टेस्ट, बाय RUAT, बायोरेट टेस्ट. एंड दूसरा जो है वो है निन हाइड्रीन HYDRIN. ये दोनों टेस्ट प्रोटीन्स के लिए होती हैं. और ये जो टेस्ट है ये अमीनो एसिड्स के लिए भी होता है. तो ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कंप्यूटर एग्जाम में. तो मैं बता दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं इस नोट में. तो मैं बीच बीच में आपको बता देता हूँ, लिख लीजिएगा. तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या है? कॉन्जुगेट प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, मेटल प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड प्रेजेंट कौन कौन से होते हैं? जो क्रोमोप्रोटीन में कलर पिगमेंट, ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट, फास्फोप्रोटीन में फास्फोरिक एसिड, लिपोप्रोटीन में लिपिड्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक एंड मेटल प्रोटीन में मेटल. एंड व्हाट इज एग्जांपल ऑल दीज conjugated protein? तो क्रोमोप्रोटीन हीमोग्लोबिन, and glycoprotein example mucin, present in saliva. Phosphoprotein phosphoric acid, casein in milk. And lipoprotein lipovaline in egg yolk. And nucleoprotein found in viruses. And
metalloprotein, example sarcoplasmic. Next, dry protein. They represent various stages of hydrolytic cleavage of simple or conjugated protein. Example, protease, peptones, peptide, etc. And next, classification on the basis of shape or molecules. Sorry. On the basis of shape, molecule protein are classified into two main groups, fibrous protein and globular protein. Here discuss about fibrous protein. Fibrous protein are long and thread-like ribbon structure, like and tend to lie side by side to form fiber. They are generally insoluble in water. The fibrous protein insoluble in water, as the intermolecular force in these proteins are rather strong. They serve as the chief structural material of animal tissue. एग्जाम्पल केराटिन, मायोसिन, कोलेजन. यहाँ से भी कंप्लीट एग्जाम में पूछे जाने वाला है फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल. एंड ये पॉइंट भी पूछ सकते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर. तो याद रखिएगा, अलग से नोट क्या करो जो मैं यहाँ पॉइंट बताता हूँ. एग्जाम्पल केराटिन, मायोसिन, कोलेजन. नेक्स्ट, ग्लोबुलर प्रोटीन. Global protein are the spheroidal in shape. They are generally soluble in water. Fibrous protein insoluble होती हैं and global protein soluble होते हैं in water में and या aqueous solution of acid, base and salt. As intramolecular force in the protein are relative to water, these proteins are generally involved in physiological process of animal body. Example, enzymes, hormone, hemoglobins. Next, on the basis of solubility, albumin, globin, protamine and histone, glutamine, prolamines और स्क्रोलोप्रोटीन्स. तो बताते हैं इनके बारे में. Albumin, these proteins are soluble in distilled water, dilute salt and base solution. Example, lactoalbumin and egg albumin. Globule proteins. These proteins are insoluble in distilled water but soluble in dilute salt, acid and base solution. Example, serum, globins and beta-lactoglobin in milk, myosin and actin in meat. Protamines and histones. These proteins are highly soluble in distilled water. They are small molecules stable to heat that is not coagulated by heat. Protamine soluble in NH4OH, whereas histone insoluble in NH4OH. Glutamines. These proteins are insoluble in distilled water and alcohol but soluble in dilute acid and base solution. Example are gluten in wheat and origin in राइस. यहाँ से भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है ग्लूटेन्स किसमें प्रेजेंट होता है एंड ओरिजिन प्रोटीन, मतलब राइस में कौन सा प्रोटीन होता है और वीट में कौन सा प्रोटीन होता है. तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है. तो यहाँ आप इसको अच्छे से याद करें, नोट करें. प्रोलामाइंस. दीज प्रोटीन आर insoluble in distilled water but soluble in dilute base. 70 to 18% alcohol. Example are जेनिन in corn and glycidin in wheat. यहाँ जो प्रोलामाइंस प्रोटीन होते हैं वो कॉर्न में जेनिन होते हैं एंड ग्लाइसिडिन बीट में. स्क्लेरोप्रोटीन. These proteins are insoluble in most of the solvent like water, dilute acid and dilute salt solution, etc. They are generally fibrous proteins serving a structural and binding purpose. Example, collagen, elastin and keratin. These are the solubility based classification of proteins. और यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो गाइस इसको याद करें क्योंकि यहाँ कई प्रोटीन्स के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको जरूर पढ़ें. मेरा ख्याल है यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होने में आएंगे. आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्राइमरी
सेकेंडरी एंड टर्सरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड प्राइमरी। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन में उनके अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड लिंक विद वन अनदर थ्रू पेप्टाइड bonds. Here, this is a primary structure of proteins. Next, secondary structure of proteins. Peptide chain may acquire spiral shape or may be present in zigzag manner. This coiling of peptide chain is called secondary structure of protein. It is due to hydrogen bonding. Here, this is a secondary structure of proteins. This is a beta सीड्स एंड अल्फा हेलिक्स मॉडल होता है। ये जो ये राउंडेड है इसको अल्फा हेलिक्स मॉडल कहते हैं। और ये जो ऐसे घूम घूम के आ रहा है और ये जो मतलब इधर अलग से दिखाया गया है ये बीटा शीट्स होते हैं जिसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ट्विस्टिंग ऑफ फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें फोल्ड हुए होते हैं, मड़े हुए होते हैं एक दूसरे में। पॉलीपेप्टाइड चेन रिप्रेजेंट द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। Quaternary structure of protein. Quaternary means four. It is the arrangement of multi-folded protein or coiling protein molecule in the multi-subunit complex. A variety of bonding interaction include hydrogen bonding, salt bridge, and disulfide bond holds and various chain into particular geometry. And here is a quaternary structure of protein. तो फ्रेंड्स, प्रोटीन का सिलेबस ख़त्म हो चुका है। अगर कुछ रह गया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम उसके भी लिए भी वीडियो बना देंगे। लेकिन कुछ पॉइंट मेरे को अभी भी याद हैं जो मेरे को अब आपको बताने हैं, कंपनी के में पूछे जाते हैं, तो आप उनको नोट कर लीजिएगा। कुछ फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं प्रोटीन्स की, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अभी आप नोट कर लीजिएगा। तो लिखिए, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में पूछा जाता है कि प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होता है। प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होता है? तो प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 0 होता है, 0। एंड मेजर मिल्क प्रोटीन कैसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लिख लीजिए, मेजर मिल्क प्रोटीन का कैसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4.6 होता है। और इसमें फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो मैंने पॉइंट यहाँ बताऊंगा। एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है, तो एम्फोटेरिक बिहेवियर लाइक अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स आर एम्फोलाइट्स, दे एक्ट एज अ बोथ एसिड एंड बेस। तो यहाँ एम्फोलाइट्स क्या होते हैं? जो एसिड और बेस होते हैं उनको एम्फोलाइटिक बिहेवियर कहते हैं। और गाइज एक और पॉइंट है, साल्टिंग इन और साल्टिंग आउट क्या होता है? जो सॉल्युबिलिटी होती है इसमें प्रोटीन में, उसमें द इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी इन डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशन ऑब्जर्व विद ग्लोबुलिन्स इज known as salting in. I will repeat it again. The increase in solubility in dilute salt of solution observed with globulins is known as salting in. And what is salting out? The decreased solubility of protein at high salt concentration is known as salting out. तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही बताना है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।